Hello, hello, hello. Welcome back in this wonderful session of IELTS Zero to Hero, where I'm here dealing with the grammatical topics so that you can ace your IELTS examination effortlessly. So let's get started. As you all know that I've already covered numerous topics based on conjunctions, connectors, modal verbs. Today I'm going to deal with another most important topic, which is verbs. I know that you guys have heard, listened and studied about it when it comes to your school or maybe your college or else, but still it has a very crucial element when it comes to your IELTS thing. So now let's get started without wasting any further time. So yes, here are the topics that we'll be covering today, and these are the topics that are going to help you in order to ace your IELTS examination. Verbs I'm going to deal with, and then types of verb types with meaning, additional verbs and example. So today going to tell you a bit about what that verb deals with and a minimal example of it. In the further sessions, I'll be giving you, I'll be diving deep into the section of what exactly verbs are and how you have to use them. Again, ग्रामर को ग्रामर जैसे पढ़ना है. इट्स नॉट समथिंग दैट यू हैव टू रटना नहीं है किसी चीज को. विद रिस्पेक्ट टू एग्जामिनेशन पढ़ना है. वर्ब का आपके आईएलटीएस के एग्जाम में जितना काम है सिर्फ और सिर्फ उतना पढ़ना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है. ठीक है. सो जस्ट डोंट टेक अ बर्डन ऑफ इट कि अरे मेरे को ग्रामर भी करना है, मुझे ये भी करना है, वो भी करना है. इट्स ओके, फाइन, टोटली फाइन. जस्ट काम योरसेल्फ डाउन एंड लिसन टू व्हाट आई एम टेलिंग यू. इतना भी अगर पढ़ लोगे, एक मेयर अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है बस. व्हेन इट कम्स टू योर डिफरेंट मॉड्यूल्स, हमें किसके साथ डील करना है? हमें इंटायर इंग्लिश लिटरेचर के साथ डील नहीं करना है. हमें डील करना है विद रिस्पेक्ट टू कि हमारे पास किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, उन क्वेश्चन को हमें डील कैसे करना है, एंड हमें कौन से टेंस यूज करना है. उस टेंस में वर्ब का क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, तो हमें उसको कैसे डील करना है. दैट इज द ओनली थिंग दैट दिस एंटायर आईएलटीएस एग्जामिनेशन कंटेन्स ऑफ. ठीक है. उसके पर्सपेक्टिव से कि हमें कौन कौन से टॉपिक बहुत ही ज्यादा एकदम क्लियर होने चाहिए. दोज आर द टॉपिक्स आई एम कमिंग अप विद यू. हियर इज व्हाट वर्ब इज. एक बार देख लेते हैं व्हाट एग्जैक्टली इट इज. ठीक है, चलो. So yes, as you all know that verb is a word, or you can say verb is an action word. ठीक है, ये पता है सबको. चलो, a verb is a word that expresses an action, occurrence or state of being. ठीक है, what exactly verb contains? It is a word that expresses actions, occurrence and state of being. Now what's next? It is an essential part of a sentence and helps convey what the subject is doing or experiencing. अब यहाँ पे एक चीज देखना कि जब भी आप कोई सेंटेंस फ्रेमिंग करते हो या कुछ भी सेंटेंस फ्रेमिंग कर रहे हो, वहां पे वर्ब का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है. क्यों होता है? बिकॉज हम कोई भी चीज बताते हैं या कोई भी चीज को कन्वे करते हैं, उसमें एक्शन जरूर होता है. लाइक I'm going to say that 90% of the time, whenever you are conveying something, whenever you are trying to have a conversation, or whenever you are trying to, come up with this some kind of a content, it contains verb, right? It definitely contains verb. अब क्वेश्चन ये आता है कि whenever you are talking about verb, what exactly it is, हमें कितना पढ़ना चाहिए, what exactly we need to cater to is just that grammar is there to maintain the accuracy. ठीक है, इतना याद रखना. When it comes to your IELTS examination, हम grammar क्यों पढ़ते हैं? Because we have a parameter. एक parameter है हमारे पास that says grammatical range and accuracy. ठीक है. ठीक है, हमारे पास एक ये पैरामीटर है दैट सेज ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी. अब ये पैरामीटर क्यों है? तो सबसे पहले ये समझो कि आपके जो आईएलटीएस के एग्जाम होते हैं उसमें अगर आप कोई भी मॉड्यूल देख लो, एक्सेप्ट लिसनिंग एंड रीडिंग, हम राइटिंग या स्पीकिंग की बात करें तो वहां पे हमें मॉड्यूल या पैरामीटर के हिसाब से हमें मार्क्स मिलते हैं, राइट? एक पैरामीटर है हमारे पास ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी. In this, it contains all kind of grammatical thing like tenses आप जो use कर रहे हो, sentence structure जो कर रहे हो, जो punctuation use कर रहे हो, जो आप spellings use कर रहे हो, like it contains all of them. ठीक है. अब बात ये आती है कि ये जो आप यूज कर रहे हो इसमें कौन कौन से
ग्रामेटिकल टॉपिक्स रेलेवेंट है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि हमें एक्यूरेसी चाहिए, तो अब आप एक्यूरेसी के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच तो पढ़ने नहीं बैठोगे। अगेन पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब नाउन, प्रोनाउन, वर्ब तो डेफिनेटली हम पढ़ रहे हैं, एडवर्ब नहीं पढ़ना पड़ता है, एडजेक्टिव हमें पढ़ना पड़ता है। अगेन कंजंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीपोजिशन इज इंपॉर्टेंट बट टू अ सर्टेन एक्सटेंट, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि उनका काम नहीं है, काम है, बट आपको सब नहीं पढ़ना। आप नाउन, नाउन के टाइप्स वो सब नहीं पढ़ने जाओगे कि उनका कोई काम नहीं है, यू ऑलरेडी नो अबाउट देम। व्हाट एग्जैक्टली इज रेलेवेंट व्हेन इट कम्स टू आइल्स इज प्रॉपर नाउन, ठीक है, बिकॉज वो आपको प्लानिंग में हेल्प करता है, वो आपको प्लॉटिंग में हेल्प करता है, वो आपको आंसर मार्क करने में बहुत हेल्प करता है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू लिसनिंग एंड रीडिंग। राइटिंग में तो प्रॉपर नाउन का काम ही नहीं है, बहुत बहुत कम काम है, बहुत मिनिमल काम है, ठीक है। तो द फैक्ट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज ग्रामर हम यूज करते हैं विद अ सेंस ऑफ एक्यूरेसी, हमें चाहिए होती है एक्यूरेसी। अब एक्यूरेसी के लिए हमें ये देखना है कि हमारे पास कौन कौन से टॉपिक्स रेलेवेंट है। सबसे पहले यहाँ पे अभी जो मैं पढ़ा रही हूँ वो वर्ब है, ठीक है, इसको देख लो। अब नाउ this is what a verb is. Verb is that expresses action, occurrence or state of being. It is essential part of sentence and helps convey what the subject is doing or experiencing, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लो verb की कौन कौन सी ऐसी चीजें होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट क्या होती है, टाइप्स ऑफ वर्ब्स होती हैं, ठीक है। जितने भी टाइप्स हैं, अगेन सारी टाइप्स इंपॉर्टेंट नहीं होती है, बट देयर आर सम टाइप्स विच आर इंपॉर्टेंट, ठीक है। टाइप्स ऑफ वर्ब्स, ठीक है। फॉर्म्स ऑफ वर्ब, ठीक है। इसमें भी टू बी वेरी स्पेसिफिक आपका मॉडल वर्ब्स आ जाता है, मॉडल हो जाता है, हेल्पिंग हो जाता है, और मॉडल ऑक्सिलरी सब सेम ही है। तो हाँ ठीक है, दीज आर द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट, ठीक है। इतनी चीजें इंपॉर्टेंट है। फॉर्म्स ऑफ वर्ब याद कर लो क्योंकि वो टेंसेस में यूज होते हैं, टाइप्स में मॉडल याद कर लो, हेल्पिंग वर्ब याद कर लो क्योंकि वो टेंसेस में भी यूज होते हैं और वो आपको डेफिनेटली आपको कन्वे करने में हेल्प करते हैं, आपकी जो इंटेंडेड कंटेक्स्ट है उसको प्रेजेंट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल थिंग। नाउ लेट्स मूव अहेड एंड लेट्स सी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वर्ब वी आर हैविंग ओवर हियर। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेटिव वर्ब की, ठीक है, सॉरी सबसे पहले बात करते हैं एक्शन वर्ब्स की, ठीक है। नाउ व्हाट इज दिस, दीज आर डायनामिक वर्ब्स, दीज वर्ब इंडिकेट अ फिजिकल और मेंटल एक्शन। अब मैं ये जो चीजें आपको बताने जा रही हूं इसको जस्ट टेक इट एज अ कंटेक्स्ट फॉर एक्यूरेसी। जरूरी नहीं है कि यही एक इकलौता टाइप ऑफ वर्ब है जो आपके हर कंटेक्स्ट में आएगा, ठीक है। अब इसको याद करने मत बैठ जाना, इसको बस समझना है, ठीक है। इसको समझना है टिल अ सर्टेन एक्सटेंट जहां पे हम इसे यूज कर सकते हैं व्हेन इट कम्स टू आवर राइटिंग और स्पीकिंग, ठीक है। अगेन अब देखो एग्जांपल देख लेते हैं। आई राइट एन एसे एवरी डे, I write an essay every day. Writing is a physical activity. तो ये हमें दिख रहा है कि it is conveying a physical action. I write an essay every day. मैं रोज एक ऐसे लिखती हूँ, तो this is something which is showing a physical action, ठीक है। She thinks deeply about environmental issue. Now this is thinking. It is very much related to, very much के entirely related to mental action, ठीक है। Next. Now here is an IELTS tip for you guys. Use strong action verbs in IELTS writing task 2 to make your argument clearer. Exactly. ठीक है. Again, with respect to grammar, some or the other way, I'm going to give you some tips related to your IELTS examination as well. ठीक है. Instead of saying people do not like pollution, say people resent pollution due to its harmful effect on health. Now अब बात आती है कि मैम वर्ड्स तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो कॉम्प्लेक्स वर्ड यूज करके क्या करना है, कहां से हम यूज करें, कैसे इसको एनहांस करें। आई एम नॉट आस्किंग यू टू यूज कॉम्प्लेक्स वर्ड, डेफिनेटली नॉट। इट्स जस्ट दैट कि जब आप वर्ब को एम्फसाइज करना शुरू करते हो ज्यादा, it enhances the clarity of the content and it makes your content stronger, right? Acceptable? ठीक है। अब बात आती है कि उसको स्ट्रॉन्ग कैसे करें। देखो सिनोनिम इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। सिनोनिम्स इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सिनोनिम तुम्हें नहीं करना है, तुम्हें कॉम्प्लेक्स वर्ड की तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं, तुम बस 3 से 4 सिनोनिम्स याद कर लो, दैट्स ऑल। थिंक, ruminate, contemplate, reckon, believe, इतना याद हो सकता है, दैट्स ऑल, ठीक है।
क्यों? हमें साथ साथ ये भी ध्यान देना है, नाउ अगेन इट इज नॉट ओनली कन्फाइंड टू योर आइल्स प्रिपरेशन, बट एक जनरल लेवल पे भी बता रही हूँ. इफ एनी ऑफ द स्कूल गाइज और कॉलेज गाइज आर लिसनिंग टू दिस एंड वॉचिंग दिस वीडियो ऑफ माइन, सो उनके लिए मैं ये बता रही हूँ कि अगर आपको असाइनमेंट लिखनी है, आपको ऐसे लिखना है, आपको स्कूल में कोई भी आर्टिकल मिला है वो लिखना है, इन दैट केस जब आप रिपीटेशन नहीं करते हो ना, तो वहां पे टीचर या एग्जामिनर को ये पता लगता है ओके दिस पर्सन इज हैविंग अ फ्लेक्सिबिलिटी ऑन द टर्म्स ऑफ वोकैबुलरी. अब मैं वोकैबुलरी क्यों, क्योंकि एवरीथिंग कंबाइंस इनटू वोकैबुलरी, चाहे वो एडजेक्टिव हो, चाहे नाउन हो, चाहे वर्ब हो. ठीक है, अब मैं वर्ब के पर्सपेक्टिव में बात कर रही हूँ, क्योंकि मैंने बोला था इनिशियली कि आप जो भी लिखते हो उसमें मेजॉरिटी ऑफ द थिंग यू मेंशन व्हिच इज विद रिस्पेक्ट टू वर्ब, बोला था मैंने. ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज याद रखना है कि जब आप उसको मल्टीपल टाइम्स डिफरेंट वर्ड्स में लिखते हो, दैट शोज योर फ्लेक्सिबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू दैट वर्ड, विद रिस्पेक्ट टू दैट थिंकिंग. ठीक है, तो ये पता चलता है एग्जामिनर को. अब आगे सुनो. नाउ ये हो गया क्लियर. एक्शन वर्ब समझ में आ गया. क्या होते हैं एक्शन वर्ब? वो वर्ब्स जो हमें मेंटल एक्शन या फिजिकल एक्शन के बारे में बताते हैं. फॉर एग्जाम्पल राइट हो गया फिजिकल एक्शन, थिंक हो गया मेंटल एक्शन. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. नाउ अब आता है स्टेटिव वर्ब. नाउ व्हाट आर स्टेटिव वर्ब्स? स्टेटिव वर्ब्स, these verbs describe a state of feeling, possession or mental process rather than action. Okay, now let me get this straight. These verbs describe a state of feeling, possession and mental process rather than action. It means it is not showing any kind of an action, but it is a stative word. मतलब it is a verb but in a stative condition, मतलब यानी constant condition पे ले लो या stagnant condition पे ले लो in case. ठीक है, I own a laptop which is a possession. I own a laptop which is a possession. She believes in hard work, which is a mental process. She believes, she has this tendency that she believes in a mental process. She believes in hard work, which is a mental process. Process क्यों दिया है यहाँ पे? ऐसा नहीं कि मैं आज बिलीव करूंगी या कल करूंगी, परसों नहीं करूंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है. She believes मतलब, अब एक चीज यहाँ पे और ध्यान रखना, थोड़ा I'm gonna go deep, but यहाँ पे एक चीज याद रखना, she believes in hard work, I own a laptop. ये दोनों सेंटेंस आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में दिख रहा है, राइट? तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम मेजरली उन चीजों को मेंशन करते हैं जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, हैबिचुअल एक्शन होता है. ठीक है, मेजरली हम उन्हीं चीजों को बोलते हैं. तो अगर मेरा मानना ये है कि अगर मैं हार्ड वर्क पे बिलीव करती हूँ, तो ऐसा नहीं अभी कर रही हूँ कल को नहीं करूंगी, ऐसा नहीं है. दैट्स गोना बी गोइंग अंटिल यू नो सम अदर काइंड ऑफ अ थॉट और एन एक्शन इज गोना कम. ठीक है, stative verbs are not usually used in the continuous form. Now see, stative verbs को हम owning, ठीक है, believing, again it depends on how you are using it. I am knowing the answer. No, I know the answer. I know the answer, right? I am knowing, again I am knowing the answer, that is not making any sense. ठीक है, मैं आंसर मुझे आंसर मालूम हो रहा है, नहीं, I know the answer, मुझे मालूम है आंसर क्या होगा, right? Next, IELTS tip again, in IELTS speaking part 1 and part 2, avoid using stative verbs in continuous tense. Again, mark it, मैंने हमेशा बोला है कि स्पीकिंग के पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में बहुत ध्यान से क्वेश्चन के हिसाब से यू गोना आइडेंटिफाई द टेंस एंड देन यू गोना यूज इट. ठीक है, उस केस में आपको स्टेटिव वर्ब्स तो आप डेफिनेटली यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको उनको कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज नहीं करना है. आई एनकाउंटर दिस काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम लाइक अ मल्टीपल टाइम्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट. ये चीजें बच्चे बहुत ज्यादा यूज करते हैं, ये गलती मत करना. ठीक है, दैट्स गोना डेफिनेटली मेक योर सेंटेंस इनकरेक्ट, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट. एक बार ही हुआ, आपके नंबर सारे एक बार में चले जाएंगे, यू विल नॉट बी हैविंग अ काउंट ऑफ इट. ठीक है, चलो now let's move ahead. Okay, now let's talk about auxiliary verb. ठीक है, क्या होते हैं auxiliary verb? auxiliary verb या helping verb. ठीक है, चलो, these verb help the main verb from a tense, mood or voice. The primary auxiliary verb are be, do and have. ठीक है, चलो, now
these are verbs that these help the main verb. ठीक है, देखो helping verb का काम क्या होता है पहले ये समझो. अगर मैं auxiliary verb बोलूँ, मैं supporting verb बोलूँ, मैं auxiliary verb बोलूँ, मैं supporting verb बोलूँ, मैं modal verb बोलूँ, इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है मेन वर्ब को सपोर्ट करना इन ऑर्डर टू मेक अ सेंस ऑफ द सेंटेंस. अब अगर मैं हेल्पिंग वर्ब की बात करूं तो इनका कोई सेंस नहीं होता. ठीक है, तो वी आर गोइंग टू यूज टू शो सम काइंड ऑफ लाइक पोजेशन और समथिंग. और बट हम अगर मॉडल वर्ब की बात करें तो वो एक पर्टिकुलर सिनेरियो शो करते हैं. वो एक पर्टिकुलर, अगर आप कैन यूज करो, कैन की जगह पे मैं यूज कर दोगे तो सिनेरियो डिफरेंट हो जाएगा. ठीक है, तो ये होता है. इनसे बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है, इनका अपना खुद का मीनिंग नहीं होता है. ठीक है, नेक्स्ट, शी इज स्टडिंग फॉर आईएल्स प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. शी इज स्टडिंग फॉर आईएल्स क्यों? क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब इज आ जाएगा. क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं हम. हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ जाएंगी विच इज आईएनजी फॉर्म, एंड देन उसके बाद आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट. ठीक है, अभी कंफ्यूजन हो सकता है, फाइन, फेयर एनफ, टोटली अंडरस्टैंडेबल. जब मैं टेंसेस पढ़ाऊंगी तो बहुत ध्यान से सुनना. ठीक है, अब यहाँ पे देखो, शी हैज कंप्लीटेड हिज प्रोजेक्ट विच इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. ठीक है, IELTS tip, correct use of auxiliary verb is crucial for IELTS writing. Task 1, when describing trends, the population has increased by 20% over the past decade. अच्छा, अगर आपको याद होगा, मैंने पहले बताया है कि जब भी आप पार्ट 1 करते हो ना, तो उसकी जो वॉइस होती है, उसकी जो राइटिंग होती है, उसकी वॉइस पैसिव वॉइस होती है. ठीक है, जब भी हम रिपोर्ट राइटिंग करते हैं, क्योंकि रिपोर्ट राइटिंग में ना या तो हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो रेलेवेंट नहीं होता. ठीक है, और अगर इफ इन केस या तो वो रेलेवेंट नहीं होता, या तो वो इंपॉर्टेंट नहीं होता, या तो हमें पता नहीं होता हु इज डूइंग दैट, राइट. तो इन दैट केस हमें रिपोर्ट राइटिंग में मेजरली हमें सिर्फ वो पता करना होता है कि हाउ दैट एक्शन इज हैपनिंग, irrespective ऑफ कि कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है. दैट इज नॉट द केस. द केस इज हाउ इट इज हैपनिंग. ठीक है, कैसे हो रहा है, दैट मैटर्स अ लॉट. ओके, नाउ so this is how it works. तो population has increased हो चुका है by 20% over the past decade. So ये जो टर्म है, ये जो हम ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब बोल लो, ये जो हम यूज करते हैं, ये मेजरली आप रिपोर्ट राइटिंग में यूज करोगे. ठीक है, क्योंकि वहां पे आपको ट्रेंड्स जो चेंज हो रहे हैं बाय द ईयर, उसको डिफाइन करना होता है. ठीक है, अब आज जो नेक्स्ट वर्ब की बात करते हैं विच वी हैव एज मॉडल वर्ब. मॉडल वर्ब देखो मैंने ऑलरेडी सारे कवर कर रखे हैं, तो आई डोंट थिंक सो आप लोगों को प्रॉब्लम होनी चाहिए, बट जस्ट हैव अ क्विक रिविजन एक बारी कर लेते हैं. Modal verb expresses possibility, necessity, ability or obligation. Common modal verbs goes can, could, may, might, must, shall, should, will and would. ठीक है, ये सारे मॉडल वर्ब्स होते हैं, सबको पता है. आई नो I've covered enough of it. ठीक है, अब एक बार यहाँ पे सुन लो. फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स. यू मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल इज एन ऑब्लिगेशन. ठीक है, it's an obligation. Next, she might move to Canada next year, which is a possibility. She might move. जब भी मैं बोलती हूँ you must follow, must show होता है for an obligation, या कह सकते हो एक strong recommendation, जिसको हम और कह सकते हैं. Again, might is a term जो हम use करते हैं to define a possibility or probability. और अगर मैं बहुत ज्यादा precisely बात करूँ तो ये low probability show करता है. ठीक है, या लो पॉसिबिलिटी शो करता है, जो कि मैंने पहले भी बताया है आप लोगों को. ठीक है, तो ये लो पॉसिबिलिटी या लो प्रोबेबिलिटी शो करता है व्हेन इट कम्स टू योर द मॉडल वर्ब्स. ठीक है, using modal verbs appropriately improves your grammatical range. See, this is what I said. Instead of saying people need to protect the environment, say people should protect the environment. Okay, नाउ मैम यहाँ पे नीड के जगह पे शुड क्यों आया? तो देखो, नीड हमारा वर्ड है जो शो करता है कि जरूरत है, लोगों को जरूरत है एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की. ठीक है, बट अगर हमें यहाँ पे रिकमेंडेशन देना है, दैट देयर इज अ डिफरेंस. अगर आप बोलोगे पीपल नीड टू प्रोटेक्ट, मतलब जरूरत है, दैट डजंट शो दैट you are ready to take an action upon it. बट अगर आप बोलोगे people should protect the environment, that says that लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहिए, that's an urgent need. Okay, that's something which is a necessity for our for we people. So the fact is, what I'm trying to tell you is that shows a sense of deliverance, that shows a sense of presentation on how committed you are on a particular thinking. आप खुद दे सकते हो, there's a difference between using a need to and using should. Okay,
Or else, if I go a little bit deeper on that, I would say that people must protect the environment because it is getting damaged or deteriorated on a daily basis. Now, what this shows, ये क्या दिखा रहा है? Again, a strong recommendation कि करना ही चाहिए. Why not? The fact is, what I'm trying to tell you, one modal verb is going to change the entire meaning of your sentence. अगर आप need to use कर रहे हो, should use कर रहे हो, had better use कर रहे हो, ought to use कर रहे हो, again must use कर रहे हो, तो there is a different meaning with respect to different modal verb. आपको उसको आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई करके यू नीड टू प्रेजेंट दैट अकॉर्डिंगली. ठीक है, तो जब भी आप राइटिंग टास्क 2 लिखते हो, देखो हमेशा मैंने इफ आई टोल्ड यू एवर कि राइटिंग टास्क इज वेरी मच, या इवन इफ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आईएल्स, अगर मैं स्पेसिफिकली आईएल्स की बात ना करूं या मैं जनरल लेवल पे इंग्लिश की बात करूं, इन दैट केस देखो क्या होता है कि जब भी आप कोई चीज लिखते हो ना, दैट शोज हाउ यू आर थिंकिंग. ठीक है, अगेन आई एम नॉट सेइंग कि आप किस बारे में बात कर रहे हो. ठीक है, दिस इज अ डिफरेंस. अगर मैंने बोला एग्जामिनर को फर्क नहीं पड़ता है आप क्या लिख रहे हो, बट उसको ये फर्क पड़ता है कि आप कैसे लिख रहे हो, उस चीज को आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हो. ओके, दैट मैटर्स एंड देयर इज अ डिफरेंस. ध्यान से सोचना इसको कभी बैठ के. ठीक है, कि आप कैसे कर रहे हो वो मैटर करता है, क्या बोल रहे हो मैटर नहीं करता. अगर आपको लगता है कि किसी पर्सपेक्टिव पे आप नहीं सहमत हो पा रहे हो, यू आर नॉट अग्रीइंग टू अ सर्टेन एक्सटेंट, फाइन, इट्स ओके, नो वन इज फोर्सिंग यू टू डू दैट. ठीक है, अगेन मैंने हमेशा बोला इसको कभी जैसे दिल पे मत लेना उसके क्वेश्चन को, गो फॉर व्हाटएवर जिसमें आपके पास ज्यादा कंटेंट है. ठीक है, हमेशा उस पे जाना है जिसके पास आप जिस टॉपिक के लिए आपके पास ज्यादा कंटेंट हो, उस पे जाना है. ठीक है, मेजरली. अब बात आती है कि ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि वन मॉडल वर्ब इज गोइंग टू चेंज द एंटायर मीनिंग. ये चीज मैंने पहले बोल रही थी कि जैसे जैसे आप वर्ड, आपकी जो वर्ड चॉइस होती है ना, वो बहुत कुछ बता दी आपके बारे में. ठीक है, अगेन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट from a personality perspective, I'm talking from an examiner perspective. या अगर टीचर आपके नोटबुक चेक कर रहे हैं तो that is going to play a major role. That shows how good grab you are having on a particular language. ठीक है, again this is also a part of it. So yeah, that's what it is. Now let's move ahead. Let's dive deeper into it. Now let's talk about transitive and intransitive verb. ये तो बहुत ही basic type है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. Transitive verb क्या होता है, intransitive verb क्या होता है. तो सबसे पहले यहाँ पे जान लेते हैं what is transitive verb. सिंपल सी चीज है, यहाँ पे देखो it says need an object. वो वर्ब जो अपना सेंस कंप्लीट करने के लिए जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, उन वर्ब्स को हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब. फॉर एग्जाम्पल, शी बॉट अ न्यू बुक. अगर मैं बुक यहां से हटा दूं, शी बॉट अ न्यू व्हाट, शी बॉट a dash, she bought a dash what, she bought a new book. So basically book is working as an object. अगर मैंने यहाँ पे bought लिखा है तो buy, bought, these are the words that are going to play an impact जब उनके साथ ऑब्जेक्ट होगा. अगर उनके साथ ऑब्जेक्ट नहीं होगा, सिंपली दे आर गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज एन इनकम्प्लीट सेंटेंस. ठीक है, नेक्स्ट इंट्रांजिटिव क्या आते हैं, दे डू नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट, ऑफ कोर्स दे आर इंडिपेंडेंट. ही sleeps early. He sleeps early on the bed. He sleeps early on a chair. That doesn't matter. He sleeps early. This is all that to give a sense of a particular sentence. इतनी चीजें बहुत है. Now, what's an IELTS tip? Understanding transitive verb in writing task 1 while describing changes. For example, the company launched a new product last year. ठीक है, so this is what is going to change the entire meaning and this is how it impacts. ठीक है, चलो आगे बात कर लेते हैं. रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स. अब ये क्या होते हैं, देखो मेजरली मैं सारे मेन जो होते हैं वर्ब, सारे मेन टाइप्स आपको बता रही हूँ एंड जितना जरूरत है उतना बता रही हूँ. डोंट डाइव डीपर इनटू इट, बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है. जस्ट गो फॉर व्हाटएवर आई एम टेलिंग यू. जितना मैं बता रही हूँ आपको उतना ही जानने की जरूरत है. बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि यू अगर वर्ब नहीं पढ़ा तो ये हो जाए, कुछ नहीं होगा. जैसे लिख रहे हो वैसे ही लिखो, जैसे लिखते आ रहे हो वैसे ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं है. It's just that how to maintain the accuracy, that is what my major aim and vision is for you guys. ठीक है, चलो जब भी हम फॉलो करते हैं ईडी पैटर्न पास्ट फॉर्म में, वॉक का वॉक, प्ले का प्लेड. ठीक है, इरेगुलर वर्ब्स डू नॉट फॉलो द ईडी रूल, गो, वेंट, स्पीक, स्पोक. ठीक है, तो ये होता है रेगुलर इरेगुलर, दैट्स ऑल. Incorrect past tense usage lower the grammar score. She go to work yesterday.
She went to work yesterday and she, yeah, this is how it goes. So incorrect grammar rule अगर आप use करोगे, definitely that's gonna impact your band score. या अगर band score नहीं भी impact कर रहा है, तो definitely if you're preparing for your college exams or your school exams, it is going to impact your marks, because एक सही रूल, एक सही टेंस हमें क्या दिखाता है? टेंस हमें टाइम दिखाता है. कोई चीज आप यहाँ पे येस्टरडे लिख रहे हो, मतलब आप ये लिख रहे हो कि कोई इंसिडेंट कल हुआ था, बट यहाँ पे आप सही फॉर्म ऑफ ग्रामर नहीं यूज करो, ऑफ कोर्स इट्स गोइंग टू इम्पैक्ट इट, राइट? चलो, let's move ahead. What it is? Okay, so we've got phrasal verbs now. Okay, the main verb, preposition, adverb that changes the meaning. Okay, so ये पूरी entire meaning change कर देता है. He gave up smoking. He gave up. Gave up का मतलब quit करना, खत्म करना, end करना. She looks forward to the meeting. Excited about it. I'm looking forward meeting to you. Now next is phrasal verbs improve speaking band scores, especially in part 2 and 3. Instead of saying I'm excited, say I look forward to the trip. So basically phrasal verb is a kind of, अच्छा, जब अब बात करते हो vocabulary की, तो basically phrasal verbs, idioms और synonyms are going to easify your work, बिकॉज ये मेजरली आपको ना, आपकी जो स्पेस होती है, आपको लग रहा है बहुत ज्यादा वोकैबुलरी आप नहीं याद कर सकते हो या नहीं हो पा रहा है, डेफिनेटली यू कैन रिप्लेस इट विद एन इडियम, एंड ऑफ कोर्स यू कैन रिप्लेस इट विद द फ्रेजल वर्ब to which they are going to present the meaning whatever you are intending to present. ठीक है, चलो, now so yeah, that's all. Thank you so much everyone. Thank you so much for being here. It has been a wonderful session with you guys. And please let me know if you need any further additional help for all the notes and for all the DPPs and all that. You can definitely refer to our PW application where you can get all the notes and DPPs. And yes, you can get access to it and get enrolled yourself so that you can have all the fun and you can get all the access to it. And yes, okay then, till then, bye-bye, take care, and all the very best to all the students who are preparing for their IELTS examination. Bye-bye, take care, see you.